السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میری بات ہوئی ہے وہابیوں کا ایک مطلب اسکالر ہے، سمجھ لیجئے وہ گوگل پر اپنا ویب سائٹ چلاتا ہے جس کا نام کفایت اللہ ہے۔ وہابیوں نے اس پر پیسہ خرچ کیا اور یہ طرح طرح کی مطلب برائیاں پھیلاتا ہے، کتابوں کے تعلق سے عقیدے غلط بیان کرتا ہے، یا جو فروعی مسائل ہیں اس میں بھی غلط طریقے سے کیسا ہوتا ہے، کتاب نکالتا ہے، کتاب کے اسکین پر اپنی وضاحت مطلب پیش کر کے ایڈٹ کرتا ہے، پھر اس کے چاہنے والے فیس بک پر واٹس ایپ میں اس کا ایڈٹ کیا ہوا امیج جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ عربی لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں، بنا اعراب کا ہوتا ہے، اور یہ اپنے مرضی سے کسی عالم سے پوچھ کر اس حساب سے اوپر سے اپنے مرضی سے لکھ دیتا ہے، اور لوگ وہی انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی بات کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے شاید، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ خرافات صرف پھیلا رہا ہے۔ جب میری بات ہوئی تو یہ فون کاٹ کر بھاگا، پہلے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، ابھی آپ آگے آڈیو سنیں گے، ٹھیک ہے؟ 4-5 بار میں نے فون لگایا تو جا کے فون اٹھایا، پھر بول رہا تھا ہم آدمی بات کروں گا، وہ بات کرتا نہیں، لیکن کیسا بھی کر کے کچھ ٹائم کیا، لیکن وہ لاسٹ میں فون کاٹ کر بھاگ گیا۔ تو ایک بھائی نے کہا تھا کہ رفع دین پر جو ہے، ترک رفع دین پر کچھ حدیث یعنی کچھ ایسا ڈیبیٹ یا بات ہو جاتی تو اچھا ہوتا، کوئی ویڈیو ڈالنے کے لیے کسی نے کہا تھا، تو میں اس کے تعلق سے ڈال رہا ہوں۔ آپ لوگ پہلے اس کا آڈیو سن لیں، اور یاد رہے کہ ویڈیو نمبر 110 جو ہے وہ آپ لوگ سنیں اور شیئر کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کسی کو اگر کوئی بیماری لگ گئی ہو، جو علاج کرا رہے ہوں اور نہ فائدہ پہنچ رہا ہو، یا آسیب ہو، جو بھی ہے، وہ ہمارے پاس مطلب جڑ سکتے ہیں، میرے پاس کال کر سکتے ہیں، اس کا علاج ہو جائے گا، کوئی بھی بیماری ہو۔ ویڈیو نمبر 110 سن لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اس کا آڈیو سن لیں۔ تو پوری بات جب نہیں ہوئی تو میں نے دوسرے ایک وہابی سے، حالانکہ کوئی اٹھاتا نہیں ہے جلدی فون، تو ایک سڑک چھاپ ہی مل گیا، کسی نے دیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں یہ بہت زیادہ مطلب خرافات بکتا ہے، ایسا ویسا، تو ہم نے اس کے پاس بھی لگایا، اس کا بھی آڈیو موجود ہے، ابھی اس کو بھی لگا دیتا ہوں، اس کو بھی سن لیں، کیونکہ کچھ بات اس میں بھی ہے، یعنی ایک ہی حدیث سے کس طرح سے بات کیا جا سکتا ہے، ان کو پھنسایا جا سکتا ہے، وہ طریقہ آپ سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے آپ یہ دونوں آڈیو سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بہت سارے حوالے دیتا ہوں کہ جو ترک رفع دین پر بھی ہے، سجدوں میں بھی رفع دین کے ہے، سمجھ گئے؟ تو انہوں نے اگر رفع دین چھوڑا ہے تو پھر سجدے والی رفع دین کو رفع دین کیا ہے تو سجدے والی رفع دین کو کیوں چھوڑا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، سنیں پورا، پہلے ان لوگوں کا آڈیو دونوں کا سن لیں، اس کے بعد میں آگے بتاتا ہوں۔ ہیلو، ہاں کفایت اللہ، السلام علیکم، کون؟ میں علی خان بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولو۔ آپ نے ایک گروپ میں دعویٰ کیا ہے کہ ترک رفع دین پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں کون سے گروپ میں؟ ایک گروپ میں آپ نے دعویٰ کیا ہے آڈیو میں کہ ترک رفع دین پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہاں موجود صحیح حدیث، نہیں ہے، ہاں صحیح حدیث ضعیف تو، تو ہاں ہاں سنیے ضعیف تو، تو بہت ہے۔ ہاں صحیح حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 757، 793 اور ایک صرف بتاؤ، صرف 6227۔ ایک، ہاں صرف ایک بتاؤ۔ ہاں تو تمہارے پاس اسلام 360 بھی ہو تو اس کو نکالو، 757 نکالو، تم پڑھو۔ نکالو نا، تم بتا رہے میں ہو تو نا، تو ہم نکالا کیوں؟ ہوا ہوں۔ ہاں تو پڑھو اس کو۔ ہاں اس میں ہے، ایک منٹ، اچھا ایسا ہے، اب 5 تو منٹ کے نہیں، بعد جسٹ جو ہے بھاگو نا مت، فون کرتے ہیں۔ بھاگو مت، بھاگو مت، ہلو، 5 منٹ کے 5 منٹ بعد نہیں، جسٹ ہم بھاگنا نہیں، فون تم کرتے۔ نکال لو۔ ارے ارے میں بول رہا ہوں نا، 5 مار، منٹ کے بعد میں فون کرتا ہوں، ابھی ارے جاب تو پر جھوٹ ہوں نہیں میں۔ اٹھائے گا، 4-6 بار فون کیا تو جا کے اٹھایا ہے۔ میں خود فون کروں گا تجھے۔ ارے تم نہیں، ابھی بات کرو، 2 منٹ بات کرو، حوالے پورا لو مجھ سے، اور ایک بھی حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ علی خان کی۔ تم نے کہا سن میں بخاری شریف سے تمام حدیثیں دکھاؤں گا ترک رفع دین پر۔ ایک منٹ ابھی کھول رہا ہوں ہاں اسلام کھولو، 360۔ کھولو جلدی، 757 نمبر پہلے کھولو، اسلام 360 سے ہی دیکھ لو۔ اتنا بڑا بڑا دعویٰ، جھوٹے مکار لوگ بھرے پڑے ہیں دنیا میں، ارے چپ جاہل، یہاں سے جا کر چیک 757۔ کر لو۔ ایک منٹ، ہاں پڑھ اس کو۔
हाँ, इसमें है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। उसके बाद एक और शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देकर फरमाया कि वापस जाओ और फिर नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो सब हाँ। वापस गया और पहले की तरह नमाज पढ़ी और फिर आकर वापस सलाम नमाज नहीं पढ़ी के बाद फिर से पढ़। किया। वो जो पढ़ा क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी, उसके बाद आगे पढ़। हाँ, तो क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी, वो शख्स वापस गया और पहले की तरह नमाज पढ़ी और फिर आकर सलाम किया। लेकिन हाँ। आपने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि वापस जा और दोबारा नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। आपने फरमाया, आपने इस तरह 3 मर्तबा किया। आखिर उस शख्स ने कहा कि उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मैं इसके अलावा और कोई अच्छा तरीका नहीं जानता, इसलिए आप मुझे नमाज सिखा दीजिए। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़ा हो तो पहले तकबीर तहरीमा कह, फिर आसानी के साथ जितना कुरान तुझको याद हो उसकी तिलावत कर, उसके बाद रुकू कर, अच्छी तरह से रुकू हो ले तो फिर सर उठाकर पूरी तरह खड़ा हो जा। उसके बाद सजदा कर, पूरे इत्मीनान के साथ फिर सर उठा और अच्छी तरह बैठ जा। इसी तरह अपनी तमाम नमाज पूरी कर। इसमें रफ़ादैन का कहाँ जिक्र है? और इसमें रेफरेंस देख लो। एक मिनट ये हदीस क्या तरकीर रफ़ादैन पे है? इसमें रफ़ादैन कहाँ है? अरे तुम्हारा पहला वाला भी रफ़ादैन नहीं है इसमें। आए? जो चीज हदीस में नहीं होता इसका क्या मतलब, उसका अब मतलब सुनो, वो है ही नहीं। अब सुनो, मैं बता रहा हूँ। एक ही मिनट अब मुझे बोलने दे। हाँ, ये हदीस में तू कह रहा है रुकू में जाते रुकू से सर उठाते रफ़ादैन का जिक्र नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो इसमें तो ना पहला रफ़ादैन जो है उसका भी जिक्र है, न इसमें तशहुद में क्या पढ़ा जाए उसका जिक्र है, न दुरूद सलाम पढ़ा जाए तशहुद में उसका भी जिक्र नहीं है, हाँ। न रुकू में जाते वक्त सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ता है जो आदमी, सुबहान रब्बियल आला जो पढ़ता है उसका भी जिक्र नहीं है। अबे तू जाहिल है क्या? अब सुनो, इस चीज का जिक्र नहीं होता क्या मतलब वो है ही नहीं? अब तो सुनो, दूसरी जगह है ना, अरे सुनो, इधर जिक्र नहीं है तो दूसरी जगह मौजूद है। अरे तो सुनो, तू सुनो, उससे तरके रफ़ादैन कैसे अरे साबित कर इसका दिया जवाब पागल? मैं दे रहा हूँ। हेलो, कैसे कैसे अरे पागल इसका लोग हैं जवाब यार। लो, इसका जवाब लो। तेरा पहला रफ़ादैन भी जिक्र नहीं है अब इसमें, सुनो, मैं बता रहा हूँ ना। वो भी रफ़ा गया मतलब। अरे बात सुनो ना। अब इस हाँ सही ठीक, हदीस पर तुम अमल कैसे करोगे? क्या अमल कैसे तो करोगे? फिर रफ़ादैन नमाज के बाद नहीं करोगे? बुखारी शरीफ एक में, बात पर टिका रहा तूने, बुखारी तरके शरीफ की रफ़ादैन हदीस है। एक बात पर टिका रहा, मैं हाँ, तो मैं भागने नहीं दूंगा। बता रहा हूँ, उसका भी जवाब मैं देता हूँ मैं। सुन जवाब उसका दे, उसी का जवाब दे। आप तेरा ठीक है। पहला रफ़ादैन जो है, पहला वाला रफ़ादैन, उसका भी जिक्र नहीं है इस हदीस अरे में, तो मैं दे रहा हूँ वो भी ना। मनसूख है। अरे तो दे किधर रहा है हूँ, इधर? तूने अभी इसका पढ़ा जवाब है नहीं जो है, उसमें जवाब नहीं कहाँ है। है और अल्फाज? पढ़ना बंद करो, जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तो तुम इस सही जाहिल, बुखारी तेरे पास शरीफ जवाब हदीस पर नहीं अमल है कैसे करोगे? इस भाई। हदीस पर अमल कैसे करोगे? जी सर, जैसे हदीस में लिखा हुआ है। कैसे अमल कर, मतलब आप रफ़ादैन नहीं करोगे एक भी ना? क्या है ना रफ़ादैन? तसव्वुफ दूसरी हदीस करोगे से ना कुछ साबित नहीं है, करोगे। दूसरे हदीस से साबित है रफ़ादैन, बुखारी के 736 खोल। ऐसा है, सुनो मैं बता रहा हूँ। पागल आदमी, जिस सुनो चीज का हर सुनो, पूरे इस्लाम जो है ना अरे एक तो हदीस में नहीं मुसन्नद इब्न समाया अबी हुआ है। शैबा किताबुस कोई सलात चीज पे इधर आ आया है, कोई जाए, चीज उधर आया है, 268 कोई चीज नंबर उधर खोल। आया है। हजरत मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबई से एक फरमाते हैं, मिनट हमने रुक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न यही उमर रदी अल्लाह एक ताला को मिनट नमाज पढ़ते हुए रुक, देखा तो वो एक इधर बार से पूरे में भागने नहीं रफ़ादैन दूंगा। करते। पागल, तेरा पहला वाला रफ़ादैन का भी इसमें जिक्र नहीं है। तो उस हदीस पर तेरे अमल तुम हिसाब कैसे से करोगे? तू कैसे करेगा? तेरा पहला वाला भी जिक्र नहीं हमारे है। नजदीक तो तमाम हदीसों को पागल मुकम्मल रखकर आदमी। हम लोग नहीं करते हैं। किसी तूने हदीस में इसमें कुछ है, किसी तरके हदीस में कुछ रफ़ादैन है। कैसे साबित किया? इसमें तो न तशहुद का जिक्र है, तो तशहुद में मतलब इस क्या पढ़ा हदीस जाए का, उसका भी जिक्र नहीं है, मतलब अच्छा, सब सब ये जो है, हदीस ज़ईफ़ है क्या? सब 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 जो ये है हदीस मतलब ज़ईफ़ नहीं है, करना है। मौजू है, मनगढ़ंत है, क्या है? इसका ये क्या मतलब हदीस मुहद्दिस एकदम ने सही निकाला? है, एक हदीस में पूरी इस्लाम नहीं समाता है, कोई अच्छा, चीज इस हाँ, तो हदीस में वही तो आता है, मैं भी कोई कह चीज रहा उस हूँ। हदीस में आता है। एक हदीस में हट, इस्लाम नहीं पागल समझता है, तभी आदमी, तो अभी बता तेरा रहा हूँ, ऑडियो मुसन्नद भेजता हूँ मैं, इब्न तेरी अबी शैबा जहालत किताबुस आवाम में सलात बताता हदीस हूँ। नंबर 268। हेलो। हाँ, दिलदार साहब बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो कुछ बात करना था सर।
हाँ बोलिए ये हमें तकलीद नहीं करना है जी। तो बुखारी शरीफ की एक हदीस है, तो उस पर अमल कैसे करेंगे? 757 पर सही हदीस मौजूद है। जी एक सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनारे पर तशरीफ फरमा थे। फिर वो सहाबी आए और सलाम किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर फिर से नमाज पढ़ो, जी इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो वापस गए और नमाज पढ़कर वापस आए, फिर से सलाम किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसके बाद में तीसरी मर्तबा भी इसी तरह से हुआ। फिर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएं। जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले वजू कर लो, किबला रुख खड़े हो जाओ, जी और उसके बाद में जो तुम्हें अच्छा कुरान याद है उसको पढ़ो। फिर रुकू में जाओ, फिर रुकू से सर उठाओ, सजदा करो, सजदे से सर उठाओ। फिर उसके बाद में जो भी है इसी तरह से पूरी नमाज पढ़ो। तो जी इसमें जो है तशहुद का भी बयान नहीं है, रफादैन का भी बयान नहीं है, और ये हदीस सही है। इस पर अमल कैसे करें हम? जी मैंने ये हदीस सुनी है। हाँ, तो आप कैसे अमल करें? हमें तो भाई तकलीद करना नहीं है, किसी के इमाम का कौल लेना नहीं है। इस हदीस पर कैसे अमल किया जाएगा? देखिए जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज बताई कि इस तरह से पढ़िए। तो सिर्फ क्या? कुरान पढ़ने के लिए बताया यार, हाँ, सलाम फेरने के लिए भी नहीं बताया। कब नहीं तक बताया, बैठे रहे हम उसमें? नहीं बताया तो मैं बोल रहा हूँ ना अब आपको। हाँ, देखिए इसी हदीस में पूरी नमाज का तरीका नहीं है भाई। जैसे बुखारी शरीफ है उसमें रफ़ा देन का है। अरे भाई तो किसी में रफादैन नहीं। अब देखिए, अब इस हदीस पर कैसे अमल करेंगे? इसको छोड़ देंगे क्या? इस हदीस का मुताला ये है साहब कि वो रुकू और सजदे ढंग से नहीं हो रहे थे। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उन्हें तो हदीस में इस ये तरह लिखा से इस है तरह से यार, करो। मुझे आपकी तकलीद नहीं करनी है। आप मुझे बता रहे हैं ना, मुझे हदीस से बताइए। जी जी हाँ, आप हदीस से बताइए दिलदार खान साहब, हदीस से बताइए। आपका मुझे तकलीद थोड़ी करना है। आप इसका मतलब ये उसका मतलब, तो ऐसा तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे नमाज पढ़ूं? ऐसा भी नमाज पढ़ूं कि सलाम ही ना फेरूं, बैठे ही रह जाऊं रातों दिन, 40 साल 50 साल? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अभी तो सही हदीस है बुखारी शरीफ में, कैसे अमल करें इस पर? तो एक ही हदीस पे अमल करोगे, और भी तो हदीसें हैं जैसे रफ़ा अरे देन और भी है, लेकिन एक आध का। बार तो इस पर भी अमल करना पड़ेगा ना, तो उम्र ही चली जाएगी। इसमें सलाम ही नहीं है फेरने के लिए। अब यार मैं इसका हदीस को पढ़ो, मुझे नोट करना। देखो उसमें सारी चीज है कि रुकू सुजू सही नहीं हो रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं कि दोबारा से नमाज नहीं, पढ़ो। इस हदीस में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बाद में शारहीन ने और इन लोगों ने सभी ने लिखा है। हमें उनकी तकलीद नहीं करनी है, हाँ नहीं हमें करनी। किसी की तकलीद नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ इस हदीस पर अमल करना है। वो कैसे करें वो बताओ आप। अब कैसे अमल करोगे आप? तो वही ना वही बताओ कैसे हम करें। चलो एक आध बार रफादैन भी कर लिया, नहीं भी किया, सब सलाम फेरने का जिक्र। मगर इस हदीस, ये सही हदीस बुखारी शरीफ, नहीं बिल्कुल बुखारी सही है, शरीफ की बिल्कुल हदीस सही है। अब सलाम है, फेरने का जिक्र ही नहीं है, कब तक बैठे रहेंगे हम? बिल्कुल सही है। क्या करें अब हम इसके लिए? अब वो और हदीसें अपन को देखना पड़ेंगी, जैसे कि कुरान के अंदर वो अरे नमाज भाई का तो और है। हदीस देखेंगे तो वैसा पढ़ लेंगे, एक आध बार वैसा भी पढ़ लेंगे, ऐसा भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब ये हदीस की बारी आएगी तो सलाम फेरने का जिक्र ही नहीं है इसमें। तो मैं उसको पूरा तरीका थोड़ी बताया उसके अंदर। देखो रुकू सुजू का बताया, वो पूरी हदीस पढ़ना पड़ेगी क्या अरे है यार, आपको ये तो कितनी आप बड़ी। कह रहे हैं ना, आपकी बात हमें नहीं लेनी है, हमें तो हदीस पढ़ना है। हदीस से बताइए यही बात। अब आप बता दो यार कि कैसे क्या क्या करें अब इस हदीस देखिए, का, मैं क्या आप बताओ। बताऊं, मैं तो पूछने मेरे आया हूँ को यार। आलिम तो होने साहब। अरे यार, देखो अहले हदीस अब मैं कैसे बताऊं? आप हमारी तकलीद करेंगे क्या? नहीं तो आपने क्या समझा, मैं तो मुझे पूछ रहा हूँ। मैं तो मैं आप क्यों आलिम तो पूछ होने रहे साहब। देखो हैं? ऐसा जो आप ऐसे बात कर रहे हो आप आप, अहलुल हदीस हैं, तो क्या आप हो गया? हमें बताएं। हम नहीं अहलुल हदीस है ना। अरे एहले हदीस तो सब है यार, जो अल्लाह नहीं जो नहीं, कुरान और हम हदीस नहीं है, पे हम नहीं है। अमल। तो आप एहले हदीस किसको साबित बोलते हैं, जो कीजिए कुरान आप हदीस अहलुल पे अमल हदीस करता हैं। है। कहाँ से हदीस पढ़िए, कहाँ से साबित है कि मैं अहलुल हदीस हूँ? जी कुरान और हदीस को मानने वाला। अरे भाई, ये आप कह रहे हैं कि हदीस हाँ से साबित कीजिए। मुझे आपकी तकलीद नहीं करनी है, तकलीद बंद कर दिया हमने अभी से। हाँ हाँ, मानो मेरी बात। भाई, कुरान को मानने वाला कौन है? कुरान को भी अल्लाह ताला अरे ने यार, हदीस बोला। सवाल आप ना करें, आप जवाब दें यार। यही मैं बता रहा हूँ। ऐसा करो यार, तकलीद ही कर लो ना कहीं जाकर तुम क्यों यार आप तो ऐसे बोल रहे हो बताओगे? जैसे जो कोई ये आलिम हो, मैं आपको हदीस भी फिर भी नहीं जवाब दे निपट रहा हूँ पाओगे आपको। यार। तुम लोग बोलते हो तकलीद नहीं करनी है, तकलीद शिर्क है, जो क्या है क्या है, क्यों फंस गए? एक ही हदीस में धजिया उड़ गई ना।
फंस गए ना। तो एक दूसरे उड़ गई। तो मेरी बताओ बात इस हदीस सुनिए, पर अमल आप कैसे सुनिए। करें हम? सलामी नहीं फेरने का जिक्र है। आप हमेशा जवाब पूछोगे अभी जब मैं बुखारी आपसे शरीफ सवाल में हदीस पूछता हूँ। है। सुनो आप मेरी बात। बुखारी मैं शरीफ आपसे सवाल करता हूँ, देखा आप एक जवाब दे दो, देखा नहीं, हम सवाल का जवाब नहीं देते, हम तो आपसे सीखना। आप अहलुल आप हदीस पूछने हो। जानते हो, आप बस पूछते रहोगे जिंदगी भर। आप पूछते रहेंगे, क्यों ना पूछूं भाई, आप अहलुल हदीस हैं। अहलुल अब हदीस जब है, जो इल्म ना हो कुरान तो को मानने अहलुल वाला है, हदीस से पूछे, तो अहलुल हदीस से मैं आप कुरान पूछ रहा मानते हूँ। नहीं आप मानते बताइए, हो? सलाम फेरने का जिक्र नहीं है, सही हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ में। तो आप नहीं फेरते हो फिर सलाम? अरे आप पूछ रहा हूँ आपसे कि अब मैं भाई क्या मुझे करूँ? मुझे इसका इल्म नहीं है हदीस साहब, से मुझे इसका बताइए, इस इल्म हदीस नहीं पर अमल कैसे किया जाएगा, हदीस से बताइए आप। है। तो जी मुझे इसका इल्म नहीं है, देखो। अहलुल हदीस तो फिर कैसे हो गए यार? ओहो, एले हदीस हो गई जो पूरी लाखों हदीस हमने पढ़ ली कि हमने कौन दुनिया में अंदर है जो पूरी हदीसें पढ़ रही है? कैसी बातें कर रहे हो आप? हदीसें पर नहीं पढ़े हो तो अहलुल हदीस कैसे हो गए? भैया जितनी है उतनी तो पढ़ी हमने हदीसें यार, ये थोड़ी कि आप पूरी हदीसें पढ़ ली सारी चीजें। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे यार दुनिया में है क्या कोई ऐसा? अरे गैर मुस्लिम लोग कुरान भी पढ़ देते हैं, आयत पढ़ देते हैं, क्या अहले कुरान हाँ। है वो? तुम तो ऐसी बातें कर तो रहे हो, चंद कोई है क्या हदीसें भी दुनिया के आपने अंदर? पढ़ ली तो क्या आप अहलुल हदीस हो गए क्या? एले हदीस, कुरान को हदीस को मानने वाला एले हदीस बोलते हैं, वो कोई भी कहाँ कहता है। क्यों? कहाँ लिखा है ये? अतीउल्लाह व अती रसूल, अरे इताअत आतिल करो, मत करो। आतिल रसूल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये अहले हदीस कहते हैं, वो कहाँ लिखा? हदीस पढ़ो। मुझे आपकी नहीं सुननी है, मुझे तकलीद नहीं करना बाबा। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ भाई। बताओ। अतीउल्लाह व अती हदीस रसूल, पढ़ो, इताअत करो रसूल। अहलुल हदीस सुनो किसको सुनो कहते हैं? सुनो आप, हैं? अतीउल्लाह व अती रसूल, इताअत करो अल्लाह नहीं, उसके रसूल की। अतिउल्लाह व अतिउर और वो रसूल। उसकी इताअत करना, कुरान को मानना, कुरान सही से अल्लाह पढ़िए। के आप रसूल की ये हदीस को यार, मानना। आप अपने गांव में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ इल्म सीखिए यार पहले। अभी इतना जल्दी क्या कहीं से पैसा वैसा मिल रहा है आपको एक क्या? इल्म, आपका मेरे को आपका मेरे नंबर सवाल का मुझे जवाब मिला दे कि दोगे आप पूरे आप? गांव में लोगों को सिखा रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, वो सिखा, क्या कर रहे हैं यार? रखो फोन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने हदीस तो पढ़ दिया है, और फिर से मैं हवाला दे देता हूँ कि जो सहाबी रसूल आए और उसके बाद में नमाज़ पढ़ी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ फिर से नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी है। तो उसका मैं हवाला दे देता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 757, 793, 6251, 6252, 6667, ठीक है ना। और ये मुस्लिम शरीफ में भी 397 है, और तिरमिज़ी शरीफ में 303 है, नसाई शरीफ में 884 है, अबू दाऊद शरीफ में 556 है, इब्ने माजा में 1007 है, मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में 9353 है, सुनन दारमी शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है, ठीक है ना। ये तमाम जगहों पर यह हदीस सही हदीस मौजूद है। अब याद रहे कि हम लोग जो है तमाम हदीसों को के जो मुहद्दिसीन हैं और जो मुस्तहदीन हैं, वो तमाम हदीसों को नज़र में रख के जो है वो फ़ैसला करते हैं कि किस तरह से अमल करना है, इसीलिए तकलीद करना पड़ता है। और ये फ़ुरू में जो है हम लोग तकलीद करते हैं। जैसे मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में है, किताबुस्सलात सफ़ा नंबर 268 पर, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 13, हज़रत मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु जो ताबई हैं वो फरमाते हैं कि हमने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, सिर्फ़ शुरू में रफ़ादैन करते थे, यानी पहली बार सिर्फ़ करते थे। तो ये लोग कहते हैं कि हम जो है रफ़ादैन करने की कोई सही हदीस नहीं मौजूद है, हालांकि इतना हदीस पेश किया हमने, बहुत सारा हदीस मौजूद है, समझ गए। बुखारी शरीफ में सिर्फ 3 हदीसें कम है, रफ़ादैन करने की ज़्यादा है और रफ़ादैन ना करने की कम है। गालिबन 3 हदीस जो है ना करने की कम है, बाकी तमाम चीज़ें ये मौजूद है। और किसी ने आज के 1450 साल के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि जो लोग रफ़ादैन नहीं करते उनकी नमाज नहीं होती है। आपको सवाल करना है कि आप किताब से दिखाएं कि रफ़ादैन नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। बस याद रहे कि हम लोग रफ़ादैन इसलिए करते हैं कि हम एक इमाम की पैरवी करते हैं, समझ गए। और जो है इस पर इजमा है कि एक ही इमाम की पैरवी की जाएगी, और हमारे लिए हुज्जत क्या है? कुरान, हदीस, इजमा और क़यास, यानी क़यास मुस्तहिद, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, नसाई शरीफ में हदीस नंबर 1086 है, हज़रत मालिक बिन हवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है।
उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज में जब रुकू में जाते या रुकू से सर उठाते या सजदे करते या सजदे से सर उठाते तो आप दोनों हाथों को अपने कानों तक ले जाते, कानों के बराबर करते, यानी सजदों में भी रफ़ादैन करते। इमाम हजर अस्कलानी फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में भी फरमाते हैं कि यह हदीस सही है। नासरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब इरवाउल गलील में भी यही चीज़ लिखा है, जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 67 सफ़ा नंबर 68 तक सही सनद के साथ में। और उसके बाद में इनके ही जो है आलिम है नासरुद्दीन अलबानी, आप नेट पर भी जाकर सर्च कर लें, किताब जो है नमाज नबवी सफ़ा नंबर 159 पर वो लिखता है कि कितने सहाबी सजदों में रफ़ादैन करते थे। लगभग 10 सहाबी रसूल का नाम गिनाया है कि वो सजदे में भी रफ़ादैन करते थे। तो जब साबित है सही हदीस से कि सजदों में भी रफ़ादैन करते थे तो सजदों वाली रफ़ादैन लोग क्यों छोड़ दिए? पहले इसका जवाब दें। ये लोग कहते हैं कि रफ़ादैन मतलब सिर्फ़ रुकू में जाना और रुकू से सर उठाना, इसी पर ये जद्दोजहद कर रहे हैं। अरे भाई, सजदों वाली रफ़ादैन भी सही हदीस मौजूद है, तो उस पर अमल कौन करेगा? उस पर तो कोई किसी के नज़दीक कोई नहीं कर रहा है। और इनके नज़दीक है सही हदीस आ जाए तो इमाम का कौल जो है दीवार पे मार दो माज़ल्ला, ऐसा किसी किताब में मौजूद भी नहीं है। लेकिन ये लोग बात को काट छाट कर पेश करते हैं। समझ गए कि इमाम का कहना है कि हमारी बात अगर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ आ जाए तो उसको दीवार पे मारो। ये अपने मर्ज़ी से इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो सही हदीस मौजूद है। नासरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि 10 सहाबी रसूल हैं ऐसे जो सजदों में रफ़ादैन करते थे। तो इमाम के कौल को ये लोग दीवार पर मारें और सजदों में रफ़ादैन करें, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारी किताबों में हवाले मौजूद हैं। आप लोग बात करें इनसे। सबसे पहले आप लोग उनसे यही सवाल करें कि सजदों में रफ़ादैन करने के लिए जो है सही हदीस मौजूद है। आपके घर के मौलवी ने, आपके अकाबिर ने दावा किया है, ठीक है ना, हवाले के साथ में, तो वो क्यों नहीं करते? ये नासरुद्दीन अलबानी ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से जो है हदीस नकल किया है और वो कह रहा है कि यह हदीस सही है, ठीक है। और ज़ुबैर अली ज़ई भी लिखा है जुज़ रफ़ादैन में, उसका भी आप सर्च कर लें, उसको वो भी नेट पे मिल जाएगा PDF की शक्ल में, उसमें भी आप देख लें। सफ़ा नंबर 15 105 106 105 पर, मतलब जो भी है आप देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा रिवायत नंबर 106 में। समझ गए? तो उसमें भी उसने लिखा हुआ है कि सजदों में रफ़ादैन करना जो है वो सही हदीस से साबित है। और ये तमाम किताबों में ये हवाला मौजूद है कि रफ़ादैन करते थे। हदीस की किताबों में मौजूद है कि सहाबी रसूल जो है वो सजदे में रफ़ादैन करते थे, सजदे से सर उठाते थे तो भी रफ़ादैन करते थे। तो इस पर कौन अमल करेगा भाई? इतने तमाम हदीसों को क्यों छोड़ा अहले हदीसों ने? ठीक है ना। तो इनसे सवाल करें आप लोग। जैसे कि अभी वो परेशान हो गया, बोलता है कि आप बस सवाल ही करोगे, यानी वो अपने मर्ज़ी से जो चाहे हमसे तकलीद करवा ले और अपना बोलता है और उसके बाद में डींगे मारे कि भाई और किसी की तकलीद नहीं करना है। यानी वहाँ भी ये चाहता है कि इनकी तकलीद की जाए, ये जो कह दें उसको मान लिया जाए आँख मूंद कर, बाकी कोई कहे तो ना मानना जाए बात। जैसे कि हमारा भी वेबसाइट आएगा 1 महीने के बाद में, जो गूगल पे तमाम जो ऐसी जो बातें होंगी, तमाम टॉपिक होगा, उस पर स्कैन के साथ में, हवाले के साथ में, मतलब हार्ड कॉपी में ओरिजिनल किताब से मैं स्कैन मतलब सही तरह से कि जिसको आप पढ़ सकें, निकाल सकें, इस तरह से मैं लोड करूँगा। 1 महीने के बाद होगा इंशाल्लाह इस पर काम, तो मैं करूँगा। क्योंकि ये लोग जो है बात करने के लायक रह नहीं गए हैं। बात तो मैं करता रहूँगा, लेकिन आप लोग भी इसमें मदद करें कि नए मौलवियों का नंबर हमारे पास सेंड करें। क्योंकि जो लोग जान चुके हैं वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं या फिर ब्लैंक लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि जानते ही हैं ना कि शिकस्त खाना है उन्हें, तो फिर कैसे बात करेंगे वो लोग, उन्हें यकीन हो गया है। और एक बात और भी मैं बता रहा हूँ कि हमने बात करते वक्त जो है वो दिलदार खान वहाबी एक है, उससे जब मैंने बात किया तो हमने कहा कि सहाबा कराम ने फरमाया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बात हुई और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, तो हमने कहा सहाबी रसूल ने फरमाया। हालांकि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, कहना चाहिए था हमें। मैं इससे रुजू करता हूँ कि हमने जो कहा कि फरमाया, क्योंकि बड़े की बारगाह में छोटे के लिए जो है इस्तेमाल करना, फरमाया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अर्ज़ किया कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखें, वो मेरे ज़बान से निकल गया है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।